words. These are the example of growing up. So, in our previous class, I told you a story of Raju and his father. So, in our story, Raju was a born baby. So, now this is a picture of Raju when he was born. He was a baby then. So, he could not walk, talk and eat on his own. So, his father and mother looked after him. जब राजू छोटा था तो वो ना ही चल सकता था, ना ही खा सकता था और ना ही बात कर सकता था क्योंकि वो छोटा था. After 5 years, he is a 5 years old. जब वो 5 साल का हुआ, then राजू स्कूल जाने लगा और वो बात भी कर सकता था, अपने हाथों से खाना भी खा सकता था और जा भी सकता था. There he learns different things about the world surrounding him. This is a picture of Raju and his father. We will find many difference between the young child Raju and his father, who is an adult. Raju will become stronger as he grow up. In a few years, Raju will grow up and become an adult like his father. So, some examples are given. A person can be tall, short, fat or thin. The head can be big or small. The nose can be different sizes and shapes. The eyes can be black, brown, grey, etc. The hair can be straight, curly and long. These are the examples of growing up. Students, although all human beings have similar organs, there is a difference in color, size and shapes. So students, in our previous class, in page number 15, we have done this exercise. So now I am again repeat this exercise. So firstly, plants change with dash age. A plant is born from a seed. Then it grows into a seedling. A seedling is a small plant. And next it become a fully grown plant. After some dash, the plant dies. So years, the plant dies. So now move to our topic. In this page number 16, some exercise are given. First is when we grow, some features change and some remain the same. Write same or change against each feature. So students, here you can see first point is color of air. So first point is color of air. First is color of hair. When we grow up, then our hair color is change or same. Answer is change. So you have to write change. C-H-A-N-G, change. Okay. And next is color of eyes. Color of eyes. When we grow up, then our color eyes change or same. So answer is change. Third is weight. When we grow up, our weight is change or same? Change. Answer
number of teeth. When we grow up, number of teeth is change or same? No, not change. Is it change? Fourth is number of teeth. It's change or same? It's same. Okay, and next is number of fingers. Number of fingers. It's change or same? It's same. And next is height. Height, it's change or same? It's change. So you all have to write change. Okay, our first exercise is complete. Again I am repeating this exercise. First is color of hair, it's change. Example, our color hair is black, brown, etc. And second is color of eyes, it's change. Okay, third is weight. Our weight is change. CHANGE, change. And fourth is number of teeth, it's same. Fifth is number of finger, it's same. And sixth is height, it's change. Next is name some other feature that remain the same or change as we grow. Friends, you all have to do B and C exercise in your homework and B and C exercise in the notebook. Okay, let's move our next exercise. Friends, in page number 16, paste your photograph and that of your best friend in the blank box. Compare the two photographs and fill in the details. Friends, paste your photograph and this motion is paste your friend's photographs. Okay, now move to our exercise. Let's start our exercise. First is my hair is dash. So here you have to write your own hair color. So my hair color is black, brown, etc. So first is my hair color is black. And next line, my friend's hair is dash. So here you have to write your friend's hair color. So my friend hair color is brown. Second is I have dash eyes. So I have black eyes. I have black eyes and my friend has dash eyes. So my friend has blue eyes. And C is I have dash nose. I have a dash nose. I have a small nose. And second line is my friend has a dash nose. My friend has a flat nose. And D is I am dash thinner and fatter than my friends. So I am thinner than my
and my friends. So students, in your homework you all have to do B and C exercise in page number 16 and fun time first exercise face flow photograph in the homework exercise B and C page number 16 and fun time first exercise face flow photograph. Students, today class is over now. Thank you. You can take rest for 5 minutes and after 5 minutes come back for your next. Hello students, welcome back. This is your computer period and I am going to take your computer class. Okay guys? Before starting our new chapter, we would like to take the revision of that chapters, lesson 1, computer and electronic device. Kids, what is a computer? Computer is an electronic device which make our life easier. Okay? You have studied in first chapter. There are many functions of computer. A computer can also be used for the following activities: typing letters or stories, listening music, playing games, solving sums, drawing pictures, watching movies and cartoons, etc. Okay? Next is parts of computer. What are the parts of computer? You have already told and you have already seen in your classroom computer room that there are many parts of computer: CPU, keyboard, mouse, monitor, and all others. Our next topic is advantages of computer. What are the advantages and disadvantages? Advantages: speed. First advantage is first is speed. What is speed? A computer works much faster than we do. It can also do many things at the same time. Other comparison to us, computer do more faster work. Second is storage capacity. A computer has a large memory. It can store a large amount of data. Yes. Third is accuracy. Accuracy means doing something without making a mistake. A complete computer does not make any mistake. It makes a mistake only when you give a wrong instruction to it. As you know, computer never does any mistake. Next
learning and entertainment. In this, students use computer to get information about any topic, text, pictures, videos, sound clips, and etc. These enhance a child's desire to learn. Not only kids can watch entertaining videos and presentation on computer, learn from them. Next is amount of work. Amount of work. In this, a computer does not get tired or bored. It can do a huge amount of work for a long time. As you know, we get tired after doing a long time work, but computer cannot. These are the advantages. Next, come to our disadvantage. Our disadvantages are some people steal data from the computer. They use the stolen data in wrong ways. Some people put harmful things called viruses into computer. Viruses harm the data stored in a computer. Okay. Next is some people work on a computer for many hours that cause pain in their eyes, neck, back, and hands. Yes. Continuous work in a computer also causes pain in their eyes, neck, back, and hands. Next, disadvantage is computer cannot think and take its own decision. As you type and as you give the information to the computer only listens that. Computer cannot think and take their own decision. This is for the chapter 1. Now come to our chapter 2. Now our next chapter is uses of computer. Means you have to learn in this that where are the computers are used. First is at home. Second is at school. Third is in shops. Fourth is at railway station. Fifth is in banks. Sixth is in hospital. And seventh is in offices and many other places. Let's read our chapter. Computers are used by everyone. Different people use different computer for different tasks. Computers are very important. You will learn about the use of computer and its importance in this chapter. Uses of computer at various places. Computers are used at many places. First is at home. Okay, kids? To do homework and search for information, to draw pictures and solve songs, to play games, to watch movies and listen to music. There are many uses at home. You can do homework and search any information regarding computer, to draw pictures and solve songs. Okay. Next is to play games, listen music and watch movies. These are the uses at home. Next is our at school. At school, what are the uses of computer? At school, you have made timetables and report cards. Our teachers use this function to learn and do practical work in the lab. You also go to the lab and do practice in computer practice now before exam and between the classes. Next is to keep records of a book in a library. And last is to keep record of all students. These are the function of a computer in which we use in our school days. Next is in shops. When you go to the any shop, what are the uses of computer? To make bills. You already seen that in shops. Their bills are printed in from by the computer. To keep a record of items bought and sold. And what are they mentioned? What you are buying and selling. These are the records in which we as in shops we are kept. Next is at railway station. To book and cancel tickets. When you are going from here to anywhere, you have to book tickets now. So you book tickets from the station. To keep records of all passengers. When you move from one place to another, you have the record of passengers now. They have the record, so they update in computer. To update timetables of train and flights means there is a delay or previous. What is the timetable? Delays, and you have to see from the computer. Next is in banks. What are the uses in banks? To put in and take out money. In banks, you already seen that with the help of computer, you take out our money and put in. Next is to keep records of a customer and their money.
they also just like school, we keep our records of students same as that they have to record of the customers and their money. Next is in hospitals. In hospital, to check the health of a patient, we need a computer. To keep medical records, we need a computer. To make bills, we need a computer. There are many different uses of computer. In offices, what are the uses in office? Same as to keep records, to type letters, to send emails and to make projects. There are different uses in offices. Next is for space and different purposes. To keep record of criminals, to search about space and launch satellites, to communicate with other people, to keep record of defense equipments. For designing, to design buildings, airplanes, cars, machines and so on. To make cartoons and animated movies, to make books and clothes. These are the different uses of computer. Now, there is exercise given in page number 22. Okay, here is the match the columns. Okay, kids, what you have to do? See what is written: uses of computer and their places. This is mentioned. Keep medical records. Where you have to keep medical records? At hospital. You have to match from here to here. Next is send emails. Where you do this work? Offices. Send emails. Next is make timetables. Where you do this work? At school. Next is watch movies. At home we watch movies on the computer. Put in and take out money. Where do you do? Here you deposit our money. Bank. You will withdraw from bank also now. This is the exercise you have to do in your book. Now next is importance of computer. Computer is a wonderful creation. Almost everyone uses computers nowadays. In schools, computers are used in classrooms, labs, staff rooms and offices. Teachers use smartboard to teach in classroom. Children can listen to audios and watch videos to learn. They can also do activities and play quizzes. All these makes a classroom lively and interesting. This is reading the chapter. Now come to exercise. Next is page number 22. Exercise is given. How is the computer used in these places? Tick the correct answer. Okay. First is in our school. So students, you have to given three options: to make report cards, to cook food, and to put money. What are the uses of school? To make report cards, to cook food, or to put money. So I don't think so. There are three options. First option is correct. Why? Because in a school we never cook food and we never put money. So what are the answers there? To make report cards. First answer is A. First A. Okay? You have to pick A. Second, in a shop. What are the uses of computer in a shop? To make bills, to draw pictures, or to sleep. Yes. On again, answer A. That is to make bills. Next is at the railway station. To make a line, to book tickets, or to keep medical records. At the railway station we use to book tickets. So what option is correct? B. You have to take B number. Next is in a hospital. To check the health of a patient, to keep records of a books, and to send emails. What are the uses of computer in a hospital? To check the health of a person. Okay, kids? Next is fill in the blanks. 4 options, 5 options are given. B exercise. First is we use computer to dash satellites. What we do satellite? Launch. L-A-N-C-U-H. It's called launch. Next is dash makes a classroom lively and interesting. What makes a classroom lively and interesting? Computers.
Next, can be designed using computers. What can be designed? Buildings. Next, we can use computer to make bills. Okay, guys, you have to fill 4 options. First is launch, second is computer, third is buildings, and fourth is bills. Okay, guys. Next is true false. First, student, I want to know the some information. What is the full form of ATM? ATM stands for automatic teller machine. We can use ATM to make out money from a bank account. ATM runs with the help of computer. Okay, guys. Come to our true false exercise C. First, the full form of ATM is automated teller machine. It is true. Next, computer can be used only at a few places. No, computer use can everywhere. Next, children cannot take quizzes on a computer. Again false. We can take quizzes on a computer. Next, teachers use a smartboard to teach in a classroom. True. Student. Next is, now your exercise are done on page number 22 and 23. Now homework for today is, your class is over. That's all for today. Your homework for today is you have to read this chapter lesson 2 properly with the help of your parents and fill the exercise of page number 22 and 23 in your book. Thank you for attending this class. We will meet in next class. Welcome back students in Shivaji Group of Institutions online classes. This is your first period. But before starting our study, let's take 1 minute relief. So, take this position and close your eyes. Then start. Inhale and exhale. Inhale means breathe in and exhale means breathe out. Okay, so start. Breathe out. Now again breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Students, you have to do this process at least 5 times. Okay? So, let's start our study. Students, you have already taught चैप्टर 3 लाल पतंग. आपने पहले ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 3 लाल पतंग पढ़ लिया होगा, पर मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से लाल पतंग चैप्टर का रिवीजन कराती हूँ और आपको बताना है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या था लाल पतंग में? 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, लक्ष्य और प्रांजलि, और वो दोनों क्या कर रहे थे? लक्ष्य को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था
वो मैदान में गए थे पतंग उड़ाने। फिर दोनों भाई बहन मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग कौन उड़ा रहा था? पतंग पहले लक्ष्य उड़ा रहा था। उसके बाद प्रांजलि कहती है कि भैया मुझे भी पतंग उड़ानी है। उसके बाद प्रांजलि भी पतंग उड़ाने लगी और उस मैदान में और भी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। मुझे लगता है आपको भी पसंद होगा। तो जैसे ही प्रांजलि ने डोर ली तो प्रांजलि भी अपनी खुशी में पतंग को उड़ाती जा रही थी, उड़ाती जा रही थी, उड़ाती जा रही, और पतंग बहुत ऊपर जाने लगी। तभी क्या होता है, कभी एक दूसरी पतंग जो लाल थी वो उस प्रांजलि की पतंग के पास आती। प्रांजलि डर जाती है कि कहीं मेरी पतंग कट ना जाए। तो वो क्या कहती है, भैया लो संभालो अपनी पतंग, और वो तुरंत डोर लक्ष्य के हाथों में दे देती है। फिर लक्ष्य जल्दी से उस डोर को पकड़ता है और उस पतंग को अपनी चतुराई से काट देता है। लक्ष्य ने पतंग काट दी, और जो काटी थी पतंग वो किस रंग की थी बताइए? वो पतंग थी लाल रंग की। और जैसे ही वो पतंग काट देता है वो पतंग ऊपर से उड़ती हुई नीचे आती है, और क्या होता है फिर? वो बिजली के तारों में फंस जाती है। अब सारे बच्चे सोचने लगते हैं अब क्या होगा, लेकिन फिर एक हवा का झोंका आता है और वो पतंग नीचे आ जाती है। सारे बच्चे उस पतंग के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस पतंग को उठा लेते हैं। लक्ष्य और प्रांजलि भी अपने घर वापस आ जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? पर इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें हमेशा खेल में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, सबसे खेल भावना के साथ खेल खेलने चाहिए। हार जीत खेल में होती है, कभी किसी से मनमुटाव नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। ओके? और कभी भी कुछ ऐसे खेल होते हैं जैसे पतंग उड़ाना है या और दूसरे खेल हैं, ऐसे खेल कभी अकेले नहीं खेलने चाहिए, किसी बड़े की देख-रेख में खेलने चाहिए, है ना? क्योंकि आप पतंग उड़ा रहे हैं, कभी आप दौड़ते हैं या कोई ऊंची जगह है तो वहां पर आपको चोट लगने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा ऐसे खेलों को किसी बड़े के निगरानी में ही खेलें। ओके? तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज कराते हैं और देखते हैं कि आपको कितना लर्न है। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बेटा पेज नंबर 22 टर्न करिए, पेज नंबर 22 पर आ जाइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। अब आपको किस पेज पर आना है? पेज नंबर 22। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आपको बताना है। पहला पूछा गया है कि लक्ष्य और प्रांजलि पतंग लेकर किस ओर भागे? लक्ष्य और प्रांजलि पतंग लेकर मैदान की ओर भागे, है ना? फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रांजलि की क्या करने की इच्छा हो रही थी? अब आप बताइए, प्रांजलि की क्या करने की इच्छा हो रही थी? अपने भैया को पतंग उड़ाते देखकर उसकी भी पतंग उड़ाने की इच्छा हो रही थी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रांजलि की पतंग उड़ाने की इच्छा हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, क्या कहते हुए प्रांजलि ने पतंग की डोर लक्ष्य को पकड़ा दी? तो क्या कहते हुए पकड़ा दी थी डोर? जब उसकी पतंग कटने वाली थी ना, तब बोला था कि लो भैया अपनी पतंग बचाओ। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? प्रांजलि ने यह कहते हुए अपनी पतंग की डोर लक्ष्य को पकड़ा दी कि भैया लो अपनी पतंग बचाओ। और आखिरी प्रश्न है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में कि मैदान में बच्चे क्या कर रहे थे? तो इसका तो सभी को पता है ना, पहले ही बताया गया था, मैदान में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है? अब देखिए, अब इसके बाद हमें दिया गया है लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति में हमें क्या करना है? इन जो प्रश्न में दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने थे और आपने लिखे भी होंगे पहले। तो पहला प्रश्न क्या है? लक्ष्य और प्रांजलि पतंग लेकर
मैदान की ओर भागे, है ना। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रांजलि की क्या करने की इच्छा हो रही थी। अब आप बताइए प्रांजलि की क्या करने की इच्छा हो रही थी। अपने भैया को पतंग उड़ाते देखकर उसकी भी पतंग उड़ाने की इच्छा हो रही थी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रांजलि की पतंग उड़ाने की इच्छा हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, क्या कहते हुए प्रांजलि ने पतंग की डोर लक्ष्य को पकड़ा दी। तो क्या कहते हुए पकड़ा दी थी डोर, जब उसकी पतंग कटने वाली थी ना, तब बोला था कि लो भैया अपनी पतंग बचाओ। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, प्रांजलि ने यह कहते हुए अपनी पतंग की डोर लक्ष्य को पकड़ा दी कि भैया लो अपनी पतंग बचाओ। और आखिरी प्रश्न है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में कि मैदान में बच्चे क्या कर रहे थे। तो इसका तो सभी को पता है ना, पहले ही बताया गया था, मैदान में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें दिया गया है लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति में हमें क्या करना है, इन जो प्रश्न में दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने थे और आपने लिखे भी होंगे पहले। तो पहला प्रश्न क्या है, लक्ष्य और प्रांजलि बाजार से क्या खरीद कर लाए। लक्ष्य और प्रांजलि बाजार से क्या खरीद कर लाए। तो इसका आंसर क्या होगा, पतंग। लक्ष्य और प्रांजलि बाजार से पतंग खरीद कर लाए, और आपने ये लिखा भी होगा। और अगर आपने अपना वर्क नहीं किया है तो अभी भी आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्रांजलि को क्या करने में बड़ा मजा आ रहा था, प्रांजलि को पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। प्रांजलि ने पतंग की डोर लक्ष्य को क्यों पकड़ा दी, अभी तो उसको अच्छा लग रहा था उड़ाने में, तो उसने क्यों पकड़ा दी थी जब पतंग कटने वाली थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि पतंग को कटने से बचाने के लिए प्रांजलि ने पतंग की डोर लक्ष्य को पकड़ा दी थी। इसके बाद पूछा गया है बच्चों कि बच्चे किसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तो बच्चे लाल पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सही वाक्यों के आगे स और गलत वाक्यों के आगे ग लिखिए। तो बच्चों अब आप बुक पेज नंबर 23 में आ जाइए और मैं जैसे ही आपसे पूछूं आप सही और गलत बोलेंगे। ओके, लक्ष्य और प्रांजलि पतंग लेकर छत की ओर दौड़े। बताइए, गलत है ना, वो कहां दौड़े थे, मैदान की ओर। खा है, प्रांजलि की पतंग उड़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उसका मन नहीं था पतंग उड़ाने का। ये भी गलत है, उसका बहुत मन हो रहा था ना। इसके बाद पूछा गया है, लक्ष्य ने काले रंग की पतंग को काट दिया था। नहीं, लक्ष्य ने लाल रंग की पतंग को काटा था। तो लक्ष्य ने काले रंग की पतंग को काट दिया था, ये गलत है। लक्ष्य ने लाल रंग की पतंग को काटा था, तो ये गलत है। पतंग पेड़ पर जाकर अटक गई, गलत, ये भी गलत है। हवा के झोंके ने पतंग को नीचे गिरा दिया, ये सही है। तो बच्चों सही गलत वाक्यों में हमारे का, खा, गा और घा वाक्य गलत है और अंगा लास्ट वाला हमारा क्या है, सही है। इसके बाद हमारी क्या एक्सरसाइज थी कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो सही शब्द चुनकर भरने थे। अब यहाँ पे क्लू बॉक्स में आपको दिए गए कुछ शब्द, उनसे आपने भरा होगा। आइए देखते हैं क्या क्या फिल किया गया था। पहले लक्ष्य ने बहन को पकड़वाई, क्या पकड़वाई थी, लक्ष्य ने चक्री पकड़वाई थी, तो पहले में आपने भरा होगा चक्री। दूसरा है प्रांजलि को पतंग उड़ाने में आ रहा था, क्या आ रहा था, मजा आ रहा था, तो दूसरे में आ जाएगा मजा। लाल कटकर नीचे गिर गई, क्या लाल कटकर नीचे गिर गई, देखिए क्लू बॉक्स में क्या क्या दिया गया है, डोर या पतंग, पतंग गिरी थी ना, तो लाल पतंग कटकर नीचे गिर गई। और आखिरी है हमारा घ नंबर, प्रांजलि ने लक्ष्य को पकड़ा दी, तो प्रांजलि ने लक्ष्य को क्या पकड़ा दी थी, डोर। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले वाले में आया है चक्री, दूसरे में आया है मजा, तीसरे में आया है पतंग और चौथे में आया है डोर। बच्चों इसके बाद 4 नंबर एक्सरसाइज है, सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। तो पहला हमारा है लक्ष्य ने चक्री किसे पकड़वाई, तो ऑप्शन दिए गए पापा को, बहन को, मम्मी को,
दादी को। तो जब भाई बहन जब भाई बहन पतंग उड़ाने गए थे तो बहन को ही पकड़वाई होगी, तो आंसर है बहन को। इसके बाद लक्ष्य ने किस रंग की पतंग को काट दिया? लक्ष्य ने लाल रंग की पतंग को काट दिया। और फिर आती है कि बिजली की तार में फंस गई चिड़िया, पतंग, मीना या डोर। तो बिजली की तार में क्या फंस गई थी? पतंग। तो बच्चों मैंने इस चैप्टर का रिवीजन करा दिया है और आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना है। इसके बाद जो भाषा की बात इसमें है पेज नंबर 24 में आपको पहले करवा दिया गया होगा, तो आपको कर लेना है। इसके बाद अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका नया चैप्टर और इसमें जो रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है मुझे आशा है कि आपने वो भी पूरा कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लें। ओके, आज मैं आपको अब अपना नया चैप्टर जो हमारे नया चैप्टर जहाँ से हमें स्टार्ट करना था वो है पार्ट 4 गुरु नानक देव जी। अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 4 गुरु नानक देव जी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु नानक देव जी चैप्टर का नेम रखते हैं। इससे पहले गुरु नानक देव जी के बारे में हमें जानना होगा कि हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। हम सभी के बारे में तो नहीं पढ़ते हैं ना, मेरे बारे में कहीं पर थोड़ी ना लिखा है बुक्स में, ठीक है। तो किसी के बारे में बुक्स में लिखा है, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसका कोई मतलब होता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है जिससे हमें जीवन में सीख लेनी है और हमें उनका अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब उनकी बातों का पालन करना है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी कौन थे? गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख एक धर्म होता है और इन्होंने ही उस धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो सिखों के प्रथम गुरु थे। तो यहाँ पर जब स्टोरी बच्चों शुरू होती है तो मर्दाना, इनके 2 शिष्य थे, मर्दाना और बाला। अब इनको जानने के लिए पहले आपको इनकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। पर ये जो कहानी आपकी बुक में वो कहाँ से शुरू होती है कि जब मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ये गुरुदेव जी क्या करते थे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे शिक्षा देने के लिए। क्यों जाते थे? पहले हमारे पास फोन्स नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो कैसे बातें एक दूसरे तक पहुंची और सबको पढ़ना भी नहीं आता था। तो ये जो ज्ञानी पुरुष होते थे ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, सभी जगह भ्रमण करते थे और लोगों को अच्छी शिक्षाएं उपदेश दिया करते थे। तो एक बार ये लोग किसी ऐसे गांव से आ रहे थे जहां पर लोग इनके शिष्य थे। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। अब आप इनके बारे में यहाँ से कहानी क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमको इनके बारे में जानना होगा कि क्यों हमें इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे गांव में गए उपदेश देने के लिए जहाँ के लोग बहुत गंदे थे। उन लोगों ने क्या किया, जैसे ये लोग गांव में पहुंचे इन्हें मारने लगे, पीटने लगे, ठीक है। इनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे, गंदे अपशब्द बोलने लगे। तो अब फिर भी गुरुदेव जी थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। तो गुरुदेव जी और उनके शिष्य वापस आ गए। तो जैसे वो लोग गांव के बाहर आए तो गुरुदेव जी ने क्या कहा? गुरुदेव जी ने कहा, हे ईश्वर या हे भगवान, इन लोगों को हमेशा सदैव इसी गांव में बनाए रखना। कोई बात नहीं। इसके बाद ये लोग दूसरे गांव में गए। वहां पे गुरुदेव जी का सभी ने बहुत आदर सत्कार किया। वहां के लोग बहुत अच्छे थे, सभी से बहुत प्रेम से मिलनसारता से मिल रहे थे। उन्होंने भोजन आदि का भी प्रबंध किया और इसके अलावा गुरुदेव जी के जो उपदेश थे उन उपदेशों को भी बहुत ध्यान से सुना। तो क्या हुआ, वहां पर गुरुदेव जी रहे, अपने उपदेश दिए और जब ये लौटे तो जैसे गांव के बाहर निकले तो इन्होंने बोला कि भगवान करे इस गांव के लोग कभी एक गांव में न रहे, हमेशा फैल जाए, अलग अलग बिखर जाए। मर्दाना को ये बात समझ में नहीं आई और आपको भी नहीं आ रही होगी कि जब वो लोग अच्छे हैं तो हमेशा वो लोग एक जगह क्यों नहीं रहे। अब मर्दाना को भी दिमाग में प्रश्न आ गया कि ऐसा क्यों कहा गुरुदेव जी ने। तो उसने फिर गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव जी जो अच्छे लोग हैं उनके लिए आप अच्छा नहीं मांग रहे हो, आप कह रहे हो कि वो लोग बिखर जाए, और जो गंदे लोग थे आप कह रहे हो कि वो हमेशा एक ही जगह रहे, ऐसा क्यों? तब गुरुदेव जी ने समझाया कि बेटा अगर वो अच्छे लोग
था। अब आपको बात समझ में आई कि गुरुदेव जी कितने महान थे। ठीक है, उनकी महानता के कारण ही हम उनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, जो इतनी महान जिनकी सोच थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायभोई की तलवंडी लायलपुर में हुआ था। तो पहले क्या था, ये पाकिस्तान, अब कहाँ है? पाकिस्तान में। और पहले क्या था कि पाकिस्तान हमसे अलग तो था नहीं, तो ये सब पूरा एक ही देश था। तब उनका जन्म कहाँ हुआ था? रायभोई की तलवंडी लायलपुर में, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता था। ठीक है, मेहता जी क्या थे? मेहता जी पटवारी थे। अब बेटा गुरु नानक देव जी क्या थे? जैसे बचपन से ही बहुत शांत रहते थे, मतलब जैसे दूसरे बच्चे वो शोर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, गुरु नानक देव जी हमेशा सदैव शांत बैठे रहते थे। वो अपने ही चिंतन में लगे रहते थे, अपनी बातें, लोगों के विचार सोचा करते थे। तो उनके माँ बाप ने सोचा कि ऐसा क्यों है कि जब सारे बच्चे खेलते हैं तो ये खेलते नहीं है। उनको चिंता होने लगी। फिर भी वो कोशिश करते खेले, लेकिन उनका मन किसी चीज में नहीं लगता था। वो केवल अपने शांति से अपने विचारों को सोचा करते थे। अब इसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने सोचा कि इनको पढ़ाने के लिए पुजारी और मौलवी रखवा दे, तो शायद शिक्षा लेने से, किसी के सिखाने से कोई प्रभाव पड़े। तो उन्होंने उनको पढ़ाने के लिए मौलवी और पुजारी रख दिए। बेटा यहाँ पर आपको पेज टर्न करना है। ठीक है, अब पेज टर्न कर लेंगे तो आप स्टोरी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पंडित और मौलवी जब आए तो उन्होंने इसको बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि वो भी उनको अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर पाए। अब उनके माता पिता परेशान थे। एक बार एक और घटना घटी। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी के पिता जो मेहता जी थे, उन्होंने इन्हें पैसे लेकर बाजार भेजा सामान खरीदने के लिए। वहां पे ये कुछ भूखे असहाय लोग भी थे जो मजबूर हैं, भोजन नहीं ले सकते। उन्होंने क्या किया, उन लोगों को भोजन करा दिया। अब जब वापस घर आए तो उनके पिता ने पूछा, भाई आप सामान लेने जाओगे तो पूछा ही जाएगा सामान कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं सामान नहीं लाया और मैंने अपना सामान, जो सामान के पैसे थे वो गरीब लोगों को खाना खिलाने में लगा दिया। अब उनके पिता नाराज हुए, क्योंकि पैसे तो उन्होंने किस लिए दिए थे? पैसे उन्होंने दिए थे सामान लाने के लिए, और सामान न लाकर उन्होंने दूसरे लोगों पर वो पैसे खर्च कर दिए, नेक काम में खर्च किए थे। तो उन्होंने अपने पिता से कहा भी कि पिताजी, मैंने वो धन किसी भूखे को पेट भरने के लिए खर्च किया है, तो मैंने भी तो नेक काम किया ना। अब भी उनके पिता संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इनकी शादी करा देता हूँ और इनकी गृहस्थी हो जाएगी तो अपने कामों में ये लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं लगा। उनके 2 पुत्र भी थे, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन में को जिस उद्देश्य के लिए लगाना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने वही किया और अपने जीवन को उन्होंने लोगों की सेवा में और लोगों को सही रास्ते में लाने में लगा दिया। तो बच्चों, उनके साथ हमेशा उनके ये 2 शिष्य जो मर्दाना और बाला है, ये हमेशा किसके साथ रहते थे? गुरु नानक देव जी के साथ रहते थे। ये हमेशा उनके साथ रहते थे। वे जहां भी जाते थे सदैव इन दोनों के साथ ही जाते थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहानी में बताया था। गुरु नानक देव जी का प्रभाव कैसा था? इन्होंने पूरे भारत में क्या किया? भ्रमण किया। ठीक है, उन्होंने लोगों को बताया, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी कि भगवान में भरोसा रखो। क्या करो? भगवान में भरोसा रखो, नेक कमाई करो। नेक कमाई का मतलब क्या है? नेक कमाई का मतलब है कि कभी भी आप किसी से गलत ढंग से पैसे ना कमाओ। इसके बाद ऊंच नीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। जो कोई कहता है कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, या कुछ ऐसा होता है जो धर्म पे आधारित होता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेद, जाति के आधार पर जो भेद है उनको मिटा दो और आपस में मेल जोल बढ़ाओ। हम सब मिलजुल कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो गुरुद्वारे होते हैं, वहां पर जो लंगर होता है, वहां पे सभी लोग जाते हैं, एक साथ एक ही पंगत में बैठकर खाते हैं। वो उन्हीं की शिक्षा का नतीजा है बच्चों, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था, चाहे वहां पर कोई अमीर जाए या गरीब जाए। एक बार ऐसा ही अकबर के साथ भी हुआ था। वो उनको भी वो दूसरे गुरु जी के पास गए थे, लेकिन
हमेशा क्या होता है, लंगर का नियम होता है कि सब एक समान है, सभी एक ही जगह जमीन में बैठकर पत्थर के ही भोजन करेंगे और सबको काम भी करना होता है अपने अपने हिस्से का। तो जो उन्होंने सिखाया उनके अनुयायी आज उन्हें जो उनके शिष्य मानने की कोशिश भी करते हैं और इनका जो उपदेश है वो केवल एक धर्म में नहीं कि सिख धर्म के लोग ही मानते हैं। बच्चों ये क्या है, सिख धर्म का एक निशान होता है। तो उनके केवल ये नहीं है कि केवल सिख धर्म के लोग ही मानते हैं, उनकी बातों का हिंदू मुसलमान सभी लोग बराबर से उनके उपदेशों को मानते हैं। इनके जो उपदेश है वो श्रीलंका, मक्का और कई अन्य देशों में भी फैले हुए, यानी ये वहां पर भी है और लोगों को अपनी शिक्षाएं दी। जीवन के अंतिम समय में, यानी अंतिम समय में वो कहाँ पर थे, मैंने पहले बताया था करतारपुर। और करतारपुर कहाँ है, पंजाब में करतारपुर साहिब। ठीक है, तो करतारपुर में उन्होंने क्या ली, अपनी अंतिम सांस ली। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि वे 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति में समा गए। ज्योति का मतलब यहाँ पर है कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे लोग जो महापुरुष होते हैं उनकी मृत्यु तो होती नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमेशा चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वे ज्योति में समा गए। वो उन्होंने हमेशा के लिए उन्होंने सबको अपने ज्ञान से प्रकाशमान कर दिया। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। आज भी उनके उपदेश प्राणियों को सही दिशा में लाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर बता दिया है, आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको कठिन शब्द मिलेंगे उनको आपको पेंसिल लेकर रेखांकित करना है, अर्थात अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करते रहें और उन कठिन शब्दों को एक रफ कॉपी में कहीं पर लिखें और उनका बार बार उच्चारण करें, जो आपको कठिन शब्द लगे हो कि मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है। और ये पाठ मैं दोबारा कहती हूँ, आपको फिर से पढ़ना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 32 पे आ जाना है। पेज नंबर 32 पे दिया गया है उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, और तीसरी एक्सरसाइज दी है सही वाक्यों के आगे सा और गलत वाक्यों के आगे गा लिखिए। ठीक है, और चौथी एक्सरसाइज है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, तो पहले आपको अपने आप योरसेल्फ करनी है। ओके, तो आपको पाठ पढ़ना है और खुद ही उत्तर ढूंढने। आपकी अगली कक्षा में मैं आपको इनके उत्तर भी बता दूंगी। ठीक है, तो और हमेशा आपने इससे क्या सीखा है पाठ से, गुरु नानक देव जी के चरित्र से हमने यहाँ पे सीखा है कि hमेशा सदैव हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। और इसके बाद पेज नंबर 33 में लिखा है भाषा की बात। भाषा की बात में नीचे लिखे एक शब्द के अनेक रूप लिखिए। तो आपको तो बच्चों, पेज नंबर 33 में क्या है, भाषा की बात। नीचे लिखे एक शब्द के अनेक रूप लिखिए और निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। आपको ये दोनों एक्सरसाइज अगर आती है तो आप कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं आपको अगली कक्षा में ये एक्सरसाइज कराऊंगी। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 3, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि शब्दों को इधर उधर कर दिया गया है। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है, नाराज। तो बच्चों, आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। नाराज होता है कि नाराज होता है, क्या होता है, नाराज। तो आपको इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ये एक्सरसाइज नंबर 3 कर लें। बाकी मैं आपको अगली कक्षा में बताती हूँ और आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है और गुरु नानक देव जी के बारे में जानना है और उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं भी लेनी है। थैंक यू।